اور وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. تو نبی جو کچھ کہنے شہادت کے بارے میں شہادت ہے اور غیب کے بارے میں کہنے کو شہادت ہے. گواہی مل گئی. اب ہم اللہ کو دیکھیں نہ دیکھیں, نبی نے کہہ دیا. اسی لیے ریگن کہے تو یقین نہیں ہوگا, بیگن کہے تو یقین نہیں ہوگا, اور ہندوستان پاکستان کا بیگن کہے ترکاری تو یقین نہیں ہوگا. مگر نبی کہتے ہیں ہزاروں خداؤں کے پوجنے والوں کوئی اس میں خدا نہیں ہے, صرف اللہ, تو یقین ہو گیا. اب اگر رسول کے علم غیب پر بھروسہ نہ ہوتا تو اتنے بڑا دعویٰ کو مانا کیسے ہوتا؟ نبی کے علم غیب سے انکار کر دینے کے بعد, نبی کے علم غیب سے انکار کر دینے کے بعد پورے یورپ میں کوئی جنم نہیں لیا جو خدا کو ایک ثابت کر دے. God is one. What is this proof? تین کے ماننے والوں میں رہتے ہو, تین خداؤں کے ماحول میں رہنے والوں, تین خداؤں کے ماننے والوں کے ماحول میں رہنے والوں ایک کیسے ثابت کرو گے؟ اللہ ایک ہے. کیا دلیل؟ قرآن میں ہے قل هو اللہ احد, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن. ہمیں مولوی صاحب تم کو کیسے معلوم یہ قرآن؟ ہمارے باپ نے ہم کو بتایا, کل تو آپ نے بتایا, اس سے پہلے باپ نے بتایا. ارے تبلیغ, ارے رسالت, ہادی ملت. ان کو کیسے معلوم؟ ان کے باپ نے بتایا. ان کو کیسے معلوم؟ ان کے باپ نے بتایا. ان کو کیسے معلوم؟ ان کے باپ نے بتایا. تو ذرا غور کیجیے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا, صحابہ نے بتایا اور صحابہ کو رسول نے. بات پہنچی نہ رسول تک. اللہ ایک ہے, قرآن میں ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. تم کو کیسے معلوم؟ رسول نے بتایا. ورنہ کوئی اور سورس ہو تو بتاؤ. رسول کو کٹ کر کے ایک ثابت تو کرو. جتنے صحابہ کرام اسلام لے آئے ہیں وہ سب رسول کے کہنے کے بعد. پہلے کیوں نہیں خدا کو سمجھا؟ حضرت عثمان ذوالنورین ہوئے ہیں رسول کے بعد, پہلے کیوں نہیں ہو گئے؟ اس کا مطلب خدا اتنا بڑا غیب ہے کہ جب کسی غیبنا پر بھروسہ ہوگا تبھی مانا جائے. رسول کے علم غیب سے انکار کر دینے کے بعد تو اللہ کو ایک نہیں ثابت کرتا. لا الہ الا اللہ, no God but God. Prove it. How can you challenge the all mankind that God is one? اس کو یہی رکھو. میں ایک فرضی نام لیتا ہوں, مولانا عبداللہ, تاکہ وہ کوئی کسی اوریجنل کا نام لے لوں گا تو کہیں ناراض نہ ہو. مولانا عبداللہ کے بارے میں ہمارے پیر نورانی بابا نے یہ کہہ دیا کہ مولانا عبداللہ کا جواب پورے انڈیا میں نہیں. تعارف کرانے میں کہہ دیا, فرض کرو کہ مولانا عبداللہ کا جواب پورے انڈیا میں نہیں ہے, تو کسی نے نورانی بابا کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا نورانی بابا, آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ مولانا عبداللہ کا جواب اتنا اچھا مقرر, اتنا اچھا اوریٹر تو پورے انڈیا میں نہیں, تو کیا آپ پورا انڈیا جانتے ہیں؟ پوچھنے کا رائٹ ہے اسے ہی نہیں. جب چیلنج ہے کہ پورے انڈیا میں جیسا کوئی مقرر نہیں, تو اس نے پوچھا کیا پورا انڈیا جانتے ہیں؟ کہیں میں گجرات گیا ہوں, میں نے یو پی کی دیکھا, میں نے مہاراشٹر کی دیکھا. اچھا تو ٹھیک ہے بابا, آپ سچ بولنے والوں میں, لہذا آپ نے مہاراشٹر میں عبداللہ جیسا نہ دیکھا ہوگا, گجرات میں عبداللہ جیسا نہ دیکھا ہوگا, یو پی میں عبداللہ جیسا نہ دیکھا ہوگا, لیکن جہاں آپ نہیں گئے وہاں عبداللہ ہوا تو اس سے اچھا کوئی اور نکلا تھا. جیسے آپ کیرلا میں نہیں گئے, کیرلا میں کوئی عبداللہ جیسا نکلا تھا, پانڈیچیری میں کوئی عبداللہ جیسا نکلا تھا.
तमिलनाडु में अगर कोई अब्दुल्ला जैसा निकल आया था, आंध्र प्रदेश में निकल आया था, हो सकता है बिहार में निकल आवे, बंगाल में निकल आवे, आसाम में निकल आवे, त्रिपुरा में निकल आवे, मेघालय में निकल आवे, या हो सकता है कि इस फसाद के दौर में पंजाब में निकल आवे। जहां आप नहीं गए वहां निकल आवे। तो कहने लगे भाई जहां तक जानते हैं वहीं तक चैलेंज कर सकते हैं। कहिए 3 सूबे में अब्दुल्ला का जवाब नहीं, ये मत कहिए कि इंडिया में जवाब। हाशमी मियां कहें तो हम गौर करेंगे कि ये बेशतर सूबा देख चुके। आपने कैसे कह दिया हजरत, जितना जानो उतने ही में दावा करो। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल। आप कहाँ की चीज कितना चैलेंज कर सकते हैं? जितना जानते हैं। जानने के बाहर चैलेंज इलीगल है। जितना जानते हो उतने ही में चैलेंज करो। पंजाब जानते हो तो सिंध को मत लपेटो, खाली सिंध जानते हो तो सरहद को मत लपेटो, फ्रंटियर और पख्तूनिस्तान को मत लपेटो। ये सब कोई तानवान नहीं चलेगी। सिर्फ सीधी सीधी बात करो, जहां तक नॉलेज है वहीं तक चैलेंज है। मैंने कहा सुन, मौलाना अब्दुल्ला का जवाब पूरी दुनिया में नहीं है। तो मुझे भी पकड़ के बैठ गए। हिंदुस्तान में कहो तो मान लेंगे, पूरे जहान में कैसे कह दिया? अरे तुमने इंग्लैंड देखा है, हो सकता है इंग्लैंड में कोई तुम्हें न मिला हो, स्कॉटलैंड में मौलाना अब्दुल्ला की तरह न मिला हो। तुम ये जितने शहरों में तकरीर करते हुए चले आए हो, पोर्टर में, प्रिस्टन में, ब्लैकबर्न में, लैंकास्टर में, मैनचेस्टर में, हो सकता है इन इलाकों में तुमको अब्दुल्ला जैसा न मिला हो। लेकिन अभी तुमने बेल्जियम तो नहीं देखा। बेल्जियम में कोई अब्दुल्ला जैसा निकल आया था, फ्रांस में कोई अब्दुल्ला जैसा निकल आया था, जर्मनी में कोई अब्दुल्ला जैसा निकल आया था। तब हाशमी मियां भी चुप मार के बैठ गया, जो वाकई जहां नहीं जानते वहां मिसाल हो गई था। चैलेंज वही करो, नॉलेज जहां हो। तो मौलाना पीर नूरानी बाबा की ये बात कि मौलाना अब्दुल्ला का इंडिया में जवाब नहीं, इसलिए तस्लीम नहीं हुआ कि ये पूरा इंडिया नहीं जानते। मेरी ये बात कि मौलाना अब्दुल्ला का जवाब दुनिया में नहीं है, इसलिए तस्लीम नहीं हुआ कि मैं दुनिया नहीं जानता। जितना जानता हूं उतने ही मैं कह सकता हूं, बिला तशबीह। मेरे रसूल ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो ए रसूल, वहीं तक चैलेंज करना जहां तक नॉलेज है। ये नबी, तुम्हारा ये दावा वहीं तस्लीम होगा जहां तुम्हारा इल्म हो। तुमने तो मक्के में पैदा किया, हो सकता है मक्के में कोई दूसरा खुदा न मिला हो। मदीने गए हो सकता है मदीने में कोई दूसरा खुदा न मिला हो। ताइफ में कोई दूसरा खुदा न मिला हो। जजीरतुल अरब में कोई दूसरा खुदा न मिला हो। लेकिन ये मेरे आका अरब के बाहर कोई दूसरा खुदा हुआ तब, एशिया के दूसरे मुल्क में कोई खुदा हुआ तब, यूरोप में कहीं निकल आया तब, अमेरिका में कोई दूसरा खुदा हुआ तब, चाइना में खुदा मान लिया जाए तब, रशिया में कोई दूसरा खुदा मान लिया जाए तब। तो इस्लाम जवाब देता है, किसी आदमी ने नहीं दावा किया है, मामूली बशर ने नहीं दावा किया है, किसी सड़क पर चलने वाली इंसानियत ने नहीं दावा किया है। उसने दावा किया है जो जमीन को इस तरह से देखता है जैसे तुम अपनी हथेली को देखते हो, जो रुए जमीन को इस तरह देखता है जैसे तुम अपने हाथ खुले हुए हाथ को देखते हो। उसके सामने अरब भी है, उसके सामने अजम भी है, उसके सामने अमेरिका भी है। अब हम कहते हैं हे रसूल, जब आपने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो जहां तक तुम्हारी नॉलेज है वहीं तक दावा करो। तो कहा सुन, मेरी नॉलेज में पूरा अमेरिका है, मेरी नॉलेज में पूरा अफ्रीका है, मेरी नॉलेज में पूरा एशिया है, मेरी नॉलेज में पूरा। अब मैंने कहा अच्छा ये भी मान लिया मेरे रसूल कि पूरी दुनिया तुम्हारे इल्म में है, तो अगर हम जमीन के नीचे कोई दूसरा खुदा मान लेता, मैं वो भी जानता हूँ। अगर मैं जमीन से आसमान पर कोई दूसरा खुदा मान लूं, मैं आसमान भी जानता हूँ। अगर मैं लामाका में कोई दूसरा खुदा मान लूं तब, मैं लामाका भी जानता हूँ। अगर तहतुस्सरा में कोई दूसरा खुदा मान लूं तब, मैं तहतुस्सरा भी जानता हूँ। अगर कब्र में कोई दूसरा खुदा मान लूं तब, मैं कब्र भी जानता हूँ। मैं जमीन के किसी गोशे में खुदा मान लूं, मैं गोशे गोशे को जानता हूँ। अगर मैं माजी में कोई खुदा मान लूं तब तवज्जो चाहूंगा। अगर मैं ए रसूल माजी में कोई खुदा मान लूं, मैं माजी भी जानता हूँ। अगर आज कोई खुदा मानूं तब, मैं आज भी जानता हूँ। और अगर मुस्तकबिल में कोई दूसरा खुदा मानूं तब, मैं मुस्तकबिल भी जानता हूँ। मुझे मेरे मालिक ने अली में माकाना बाबा यकूब बनाया है, दूसरा कोई खुदा नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सैयद हाशमी मियां को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। जज़ाकल्लाह।